اگر ہم خدا کے ثبوت کی بات کریں، جو آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ باتیں ہو رہی ہیں، دونوں دھڑے لگے ہوئے ہیں، اور جی کبھی جی کبھی تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دونوں کہیں ہمیں انتہاؤں کی طرف لے کے جا رہے ہیں، بیچ کا رستہ نظر نہیں آتا، سوچنے کی مہلت نہیں دی جا رہی، ہر کوئی تھوپنے کی کوشش کر رہا ہے، ہر کوئی جناب ایسے جیسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا ڈنڈا لے کے کھڑا ہے، یار اے میری مان لو پہلے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو سلمان صاحب منوانے کے چکر میں ثابت کرنا رہ جاتا ہے، کبھی ثابت کرتے کرتے اس کا منوانا رہ جاتا ہے، یہ جو ایک کشمکش ہے کہ خدا کا ہونا اور اس کا ثابت ہونا۔ کیا خدا ثابت ہو سکتا ہے؟ تو میرے خیال ہوں، میں اگر آغاز کروں تو وہ یہ ہوگا کہ اس معنی میں نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جیسے آپ پانی کا بوائلنگ پوائنٹ جو ہے ہوں، وہ معلوم کر لیتے ہیں، یا ایک کیمیکل ریئیکشن، یا آپ گریوٹی کو جیسے سمجھ لیتے ہیں، اس طرح خدا ثابت ہو جائے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ کہ ایک بات یہ ہے کہ خدا موجود نہیں، یہ ایک مختلف بات ہے، اور دوسری یہ ہے کہ خدا کو اس طریقے سے ثابت نہیں کیا جا سکتا جس طریقے سے کسی چیز کو آپ مادی طور پہ کسی لیبارٹری میں پروف کرتے ہیں۔ جی یہ دو چیزیں الگ ہیں۔ جی میرا خدا جو ہے وہ عقلی بھی نہیں ہے، اور میرا خدا سائنسی بھی نہیں ہے، میرا خدا ایک رومانس ہے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ جو ثابت کرنے جا رہا ہے، وہ جی۔ انسان جو یہ کوشش کر رہا ہے یا جو یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، کیا اس کا اپنا آپ ثابت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، غور کرنے والوں کو، خاص کر کے یار لوگوں کو السلام علیکم، آداب، خوش آمدید۔ سامعین، مجھے رانا غضنفر کہتے ہیں، اور آج کے اس خاص پوڈ کاسٹ میں آپ میرے ساتھ سن پا رہے ہیں، دیکھ پا رہے ہیں سلمان مزاری صاحب۔ سب سے پہلے تو ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ سلمان مزاری صاحب کون ہے، کہاں ہے، کیسے ہے، کیا کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، اور خدا، کائنات، سائنس اور کمپیریٹیو اسٹڈی کے حوالے سے آپ کا یہ شغل اور آپ کا یہ شغف کیوں ہے۔ سلمان مداری صاحب، السلام علیکم، خوش آمدید۔ سر وعلیکم السلام، اور سب آڈینس کو السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال۔ آپ کے آڈینس میں ماشاءاللہ میں نے دیکھا تھا بارڈر کے اس طرف اور اس طرف دونوں کے لوگ آتے ہیں۔ نام سلمان مزاری، کام میرا ایک چھوٹی سی کمپنی ہے جو ہم ڈفرینٹ کمپنیز کے بزنس گروتھ کے لیے انہیں سروسز دیتے ہیں۔ آئی ٹی کی سروسز ہیں اور ان کی بزنس گروتھ کی ڈفرینٹ آفرز ہیں ہماری طرف سے۔ اس کے علاوہ تعارف مختصراً اگر میں کرواؤں تو کوالیفیکیشن کمپیوٹر سائنس گریجویشن میں نے کی، اور اس کے بعد اسی دوران ہی جب میں بھی گریجویشن کر رہا تھا، انکوائری کا سلسلہ شروع ہوا، اپنے سیلف کی بھی، اپنے ریلیجن کی بھی، اور ہمارے، میرا خیال ہے کوئی بھی شخص شاید ایسا نہیں ہے پاکستان میں خاص طور پہ جو اس پروسیس سے نہ گزرتا ہو، جہاں پہ اسے فرقے کا، مسلک کا اور ان چیزوں کا سامنا جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو جب آپ ان بیسک سوالوں سے گزرتے ہیں تو پھر دوسرے سوال بھی بعض دفعہ سامنے آ جاتے ہیں، بڑے بھی۔ میرا جو شروعی سلسلہ ہوا وہ کچھ بڑے سوالوں سے ہوا، الٹیمیٹ ان آنسرڈ کوسچنس جو ہیں وہ کیوں ہیں۔ میں نے ایک ایک سے جا کے خالی مولوی حضرات سے نہیں، باقاعدہ جو اس ایج میں جو مجھے اویلیبل تھے علماء، جنہیں ہم باقاعدہ کہتے ہیں، تو میری ٹھیک ہے۔ تشفی نہیں ہو سکی ان سے، تو پھر اپنا مطالعہ چلتا رہا۔ میرا بہت وسیع مطالعہ نہیں، لیکن لٹریچر گھر میں اویلیبل تھا، پوئٹری اور کچھ مذہبی لٹریچر بھی اویلیبل تھا، تو اس سے شروع کرتے، اور ڈفرینٹ فرقوں کے جو دوست تھے ان کے ساتھ وقت گزارتے، اور نہ صرف وقت گزارتے بلکہ ان کا فرقہ ایک طرح سے اختیار کرتے ہوئے، جو میں اہل سنت، جو بریلوی سیکٹ ہے، اس کے اندر ان دوستوں کے ساتھ، ان جو ہے ان کی طریقہ کار سے چلتے ہوئے، اور اسی طرح اہل حدیث دوست جو ہے ان کے ساتھ بھی ویسے ہی چلتے ہوئے، تو ایک بڑا مکسڈ قسم کا مجھے ایکسپیرینس ٹوٹل ہو گیا جب۔ تو احادیث کا مجھے مطالعہ کرنے کا اس وقت ہوا، موقع ملا جب میں اہل حدیث دوست کے ساتھ تھا۔ تو وہاں مجھے، اس سے پہلے میں گھر سے، مجھے اہل تشیع گھر میں پیدا ہوا تھا، تو گھر سے مجھے جو ہے وہ کچھ نالج تھا وہ ٹھیک ہے۔ مذہب کے حوالے سے اور اس فرقے کے حوالے سے۔ تو جب میں نے کمپیئر کیا تو مجھے وہ جو کریکٹرز، جو ہمارے جو مقدس ہستیاں جنہیں ہم کہتے ہیں، تو وہ ان کریکٹرز کا مجھے اتنا اسٹرانگ حدیث میں
ख़ास तौर पे जो साहिह सित्ता वगैरह की हदीस थी उसमें वो कैरेक्टर्स वैसे नहीं नज़र आए जैसे कि मेरे पास थे। और सिर्फ़ ये नहीं कि वो शिया मजालिस में या घर से मिल रहे थे, वो बल्कि शिया अहादीस में भी वो कैरेक्टर उस तरह मौजूद थे जहाँ से वो खुद लेते हैं। ठीक है। तो इन जनरल ये है कि कुछ अहादीस जो इवन अहले तशरीह के हवाले से भी थी, उसमें भी मुझे थोड़ा-सा डाउट रहा। लेकिन एक चीज़ जो मेन रही कॉमन जो कि स्टिल स्टैंड की, वो ये थी कि चाहे कुछ अहादीस में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन करैक्टर कंसिस्टेंट था। जो ठीक करैक्टर है। था वो कंसिस्टेंट था उन हस्तियों का जिनके थ्रू हम इस्लाम को सीख रहे थे या ले रहे थे। तो वो चलते-चलते मैंने जब इसको ज़हनी तौर पे उसका यूँ समझ लें कि मेरी रिज़र्वेशंस रहीं, तो मेरी इंक्वायरी फिर भी जो है वो बाकी रही उन अल्टीमेट क्वेश्चंस के लिए जो कि आंसर नहीं हो रहे थे। ठीक है। तो अंदर से एक जो है इन सब अल्टीमेट क्वेश्चंस के बावजूद एक मुसलसल कनेक्शन जो है रियलिटी के साथ, हम्म। वो फ़ील होता था और होता रहा। ठीक और है। उसका आगाज़ मुझे नहीं पता कहाँ से हुआ। मेरी जो पहली मेमोरी है वो 5 साल की एज की है, ठीक। उस कनेक्शन की। 2 मेमोरीज़ हैं। मुझे नहीं पता वहाँ से हुआ या उसके बाद हुआ। दूसरी मेरी मेमोरी 97 की है, जब मैं हम्म। तकरीबन 16 साल का था। उसके बाद तीसरी मेरी मेमोरी 2005-2006 की हैं। मुझे नहीं पता वहाँ से हुआ। आई डोंट नो बट आई कैन आप ये कह सकते हैं कि एक सटल किस्म का एक एक्सपीरियंस होता है जिसमें आपको नहीं पता चलता, बाद में आपको एहसास होता है। और ठीक। उस दौरान भी बाज़ दफ़ा अगर वो थोड़ी माइनर किस्म की ट्रांस है जिसमें आप भी मौजूद हों, मसलन मैं कोई बहुत बड़ी कोई रूहानी या सूफ़ी को क्लेम नहीं कर रहा, ना ही मैं अपने आप को सूफ़ी या रूहानी समझता हूँ। मैं एक नॉर्मल से कनेक्शन की बात कर रहा हूँ जो आपको एक खुशू की नमाज़ पढ़ते हुए भी महसूस हो सकता है। आप अगर अपने पूरे उसके साथ कोई ऐसा लैंडस्केप देख रहे हैं या आप कोई नई बात सुनते हैं, आपको कोई आपके आपके ऊपर कुछ उतरती है, कोई नई बात रिवील होती है, तो सही। उन स्टेट्स में आपको एक कनेक्शन रियलिटी का एक ऐसी चीज़ महसूस होती है जो कि आपको नहीं लगता कि ये कायनात में पहले ये चीज़ मौजूद थी, या अगर आपको पहली दफ़ा महसूस हुई है समथिंग न्यू जो कि शायद कायनात में पहले मौजूद नहीं थी, या कम से कम आपको हम्म। पहली दफ़ा महसूस हुई है इस तरह से और दूसरों को वैसे महसूस नहीं होती। तो ये एक शॉर्ट सा मैंने आपको बता ठीक। दिया। उसके बाद मेरी जो है कॉन्शियस जो फिर एफर्ट थी, मतलब मैंने कोई जिसको कहते हैं कोई प्रैक्टिसेस या एक्सरसाइजेस नहीं की इस डायरेक्शन में, लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी और खुद को जानना और खुदा को जानना, ये दो मेन सवाल बाद में रह गए। जो बाकी अल्टीमेट क्वेश्चंस को मैंने जब साइड पे कर दिया कि फ्री विल है कि नहीं है या क्या है, उनको मतलब मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहे जब मैं अल्टीमेट इन दो क्वेश्चंस पे आ गया कि खुद को जानना और खुदा को जानना। तो ठीक है। 2006 से लेके 2016 तक एक हल्का फुल्का सफ़र रहा जिसको कहेंगे कि बेसिकली 2006 में मुझे इसको ड्रॉप करना पड़ा। गुजरांवाला के पास से जाएं तो मोड़ एमनाबाद एक जगह है जो आप लाहौर आते जाते गुजरते होंगे, आपके करीब है अगर आप हम्म। उधर से आते हैं ना। तो वहाँ एक शख्सियत थे जो जिनका अपना एक सिलसिला है खानकाही, और वो मैं उनका कोई मुरीद नहीं था, ना ही उन्होंने मुझे कभी मुरीद माना, लेकिन एक इंतहाई इल्मी और एक इंतहाई बहुत बड़े मुफक्किर और दानिश्वर, वो अपने उस खानकाही सिलसिले के अलावा और बहुत जिसको कहते हैं उलमा हजरात जिनको आप बड़े बड़े नामों से जानते हैं, वो भी उनसे वो तर्ज और वो अंदाज सीखने के लिए आते रहे। 2006 में मैंने उनसे फ़ोन पे जब ये पूछा कि सप्तान शाह जी, मैं अपने आप को ढूंढना चाहता हूँ, तो उन्होंने एक जुमला बोला जो फिर 10 साल मेरे साथ ट्रैवल किया। उनका जवाब था कि बेटा ढूंढा उसे जाता है जो खो गया हो। सलमान साहब, एक छोटी सी बात जो मैंने पूछी भी कि सलमान से
مزاری کا جو سفر ہے اس کے پیچھے بھی کوئی مصلحت ہے یا یہ کوئی شاعرانہ ترکیب تھی یا تجویز تھی؟ سر یہ مزاری ریسنٹلی میں نے دوبارہ ایڈ کیا ہے، جو میں نے کوئی 6-7 سال پہلے ہٹایا تھا۔ جی، ہم بیسیکلی مزاری بلوچ ہیں اچھا اچھا، بائی کاسٹ، تو میرے مطلب والد صاحب کے نام کے ساتھ بھی تھا، فیملی کے ساتھ بھی، سارے لوگوں کے ساتھ تھا۔ میں نے جس کو کہتے ہیں اپنے نظریے کے حوالے سے ہٹا دیا تھا۔ تو ریسنٹلی میں نے جب تھوڑا سوشل میڈیا پہ اور یوٹیوب پہ انٹریکٹ کرنا شروع کیا، تو 4-5 لوگوں کی طرف سے مجھے یہ میسج آئے کہ بھائی آپ کا تو ہم اس نام سے جانتے ہیں، کیونکہ آج سے ہوں 6-7 سال پہلے تک جتنا انٹریکشن ہے وہ مجھے اسی نام سے جانتے ہیں، سلمان مزاری۔ ٹھیک ہے، تو سلمان صادق مزاری نارملی جو میرا نام ہے، اوکے، لیکن تو سلمان صادق میں یوز کرتا رہا۔ ابھی ریسنٹلی جو ہے میں نے اس کو چینج کر کے سلمان جی صادق سے مزاری، جس سے لوگ جانتے ہیں۔ سلمان صاحب یہ بھی بتائیے گا، پھر ہم اصل سوال کی طرف آ رہے ہیں کہ آپ نے جیسے مسالک کی بات کی، اہل سنت منہج اور اہل تشیع منہج کی، ظاہر ہے ہم تو دونوں کی قدر کرتے ہیں کہ بہت ساری علمی شخصیات اور علمی جو ایک ستون ہے وہ میں دونوں میں ملتے ہیں، اختلافات اپنی جگہ پہ۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ فرقہ سے نکلنے کے بعد انسان اپنے آپ کو کیا مسلمان زیادہ سٹیبل کمفرٹیبل محسوس کرتا ہے یا وہ الہاد کے کسی زینے پہ قدم رکھتا ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں اس حوالے سے کنفیوژن ہے نا کہ جب لوگ فرقوں میں پڑھتے ہیں پھر وہ اتنے لبرل یا آزاد ہو جاتے ہیں کہ ایک لائبرٹی اڈاپٹ کر لیتے ہیں کہ وہ بالکل ہی آزاد ہوتے ہیں اور وہ مذہب سے نکل جاتے ہیں۔ تو آپ کی باتوں سے مجھے ایسے لگا کہ جیسے آپ ابھی فرقوں کے اس دوراہے پہ نہیں کھڑے، بلکہ آپ کو بہت ساری ایسی حقیقتیں سمجھ آ گئی ہیں جو فرقوں سے کہیں پرے ہیں۔ جی سلمان صاحب۔ جی سر، جو آپ نے آپ کی دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ یہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ نے 2 باتیں کی اور دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ جو آغاز ہوتا ہے وہ بیسیکلی یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کا جو بھی کسی مسلک کے اندر ہے، خاص طور پہ کوئی مذہبی شخص، اگر اس کا آلریڈی انٹرنلی اس کو کوئی کنیکشن فیل نہیں ہوا، بلکہ اس ہوں کے شکوے ہوں خدا کے ساتھ، تو پھر تو بڑا آسان ہے۔ پھر جب آپ فرقے سے نکلتے ہیں تو پھر اگلا سٹیپ الحاد ہے۔ لیکن اگر جی آپ جب مذہب کے اس میں رہے ہیں، اپنے فرقے میں مسلک میں رہے ہیں، یا ایون مسلک سے آگے نکل کے آپ مسلک فری ہو کے اور سب طرف آپ سب کو ہی صحیح بھی مان رہے ہیں، اور ان کو کسی کو آپ غلط نہیں کہہ رہے، تو اگلا سٹیپ پھر یہ ہو سکتا ہے، اگر آپ کو پہلے اپنے فیتھ کے اندر ہی آپ کو کنیکشن نہیں فیل ہوا اور آپ کے فیتھ کی اسٹرینتھ ایسی نہیں تھی کہ ہوں جس کے اوپر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، تو اگلا سٹیپ جی وہی ہے۔ اور میرے بھی جو سوالات تھے ان میں جب مجھے جوابات نہیں مل رہے تھے، تو میں خود کچھ عرصہ کے لیے اس کے بہت قریب تھا، اور اگر میں کہوں کہ میں کچھ عرصہ ایتھیسٹ رہا ہوں تو بھی غلط نہیں ہوگا کچھ عرصے کے لیے۔ لیکن ہوں میرا یہ ہے کہ میرے جو اوور کم کیا ہے، مجھے دلیل اور سائنس سے نہیں، مجھے جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے اس کی وجہ سے ٹھیک ہے، میرے لیے کچھ مشکل نہیں ہوا۔ لیکن وہ لوگ جو دلیل اور سائنس سے کوشش کر رہے ہیں اس کو سمجھنے کی اور ماننے کی، ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ تو ہوں سفر کا جو وہ راستہ ہے وہ تقریباً یہی ہے جو آپ نے بتایا، ممکنہ رزلٹ یہ ہو سکتے ہیں۔ اچھا سلمان صاحب، ہم بالکل ٹاپک کے قریب آ رہے ہیں اور میرا ایک ضمنی سا سوال ہے، اور جس سنجیدگی سے آپ جواب دے رہے ہیں مجھے لطف بھی آ رہا ہے کہ یعنی کتنی ایک آ، عجیب سی بات ہے، اور یہ دل کو لگتی ہے بلکہ چبھتی ہے کہ فرقوں میں رہتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ فرقہ پرستی غلط ہے۔ یعنی ایک طرف آپ فرقوں کو بھی منواتے ہیں اور آپ پھر کہتے ہیں کہ اسلام میں فرقہ پرستی غلط ہے، اور یہ بات ہم نے کسی فرقے میں رہتے ہوئے کرنی ہے جو ہمارے ہاں مذہبی حلقوں میں یہ بندشیں پائی جاتی ہیں۔ سر یہ جو آپ نے ایک بات کی ہے نا، اس طرح کی سینکڑوں تضادات جو ہیں وہ ہمارے اندر موجود ہیں، بالکل۔ مذہبی حوالے سے بھی اور شخصی حوالے سے بھی اور ذاتی حوالے ہوں سے بھی۔ اور
मतलब ये नहीं कि ये कोई पाकिस्तान के हवाले से, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये एक नफ्सियात का हिस्सा है। हम बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को एक साथ लेके चल रहे होते हैं, और पर्टिकुलरली अगर इस टॉपिक पे बात करें जिस पे आप कह रहे हैं कि ज़ुबान पर यही है कि मौत बरहक है, ज़ुबान पर यही हम्म। है कि फ़िरक़ेबाज़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो जो कह रहा है कि मौत बरहक है, क्या वो 1 घंटे बाद अपने मरने के लिए तैयार है? बिल्कुल नहीं। सो सो इट्स अ वर्बल जस्ट एक ज़ुबान की एक्सरसाइज़ है। एक्चुअल जो है ना उसको वो फ़ील करके या एक्सपीरियंस या एक्चुअल बिलीफ, हम्म। आगे आप खाली जगह खुद पुर कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। यानी ये बात वही है कि चराग़ आरज़ू लेकर न तुम निकले न हम निकले। तो ये बात यहाँ तक ही ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा, सलमान साहब इंशाल्लाह आगे, आज तो हमारा कोई नेट का भी इशू रहा, हम इस रिकॉर्डिंग के बाद इंशाल्लाह लाइव ही आएंगे, तो कल मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह नेट का इशू नहीं होगा। अब उसका कोई अल्टरनेट भी मैं तो अरेंज कर लूंगा इंशाल्लाह ताला, और आपके साथ गाहे बगाहे ये हमारी नशिस्तें इंशाल्लाह चलेंगी। अच्छा, जी मैं ज़रूर। अगर हम खुदा के सबूत की बात करें, जो आपने देखा होगा यूट्यूब पे बातें हो रही हैं, दोनों धड़े लगे हुए हैं, और जी, कभी जी। कभी तो ऐसा महसूस होता है कि दोनों कहीं हमें इंतहाओं की तरफ लेके जा रहे हैं, बीच का रास्ता नजर नहीं आता, सोचने की मोहलत नहीं दी जा रही, हर कोई थोपने की कोशिश कर रहा है, हर कोई जनाब ऐसे जैसे वो पंजाबी में कहते हैं ना, डंडा लेके खड़ा है यार, ऐ मेरी मान लो पहले। ठीक है जी। तो ये जो सलमान साहब मनवाने के चक्कर में साबित करना रह जाता है, कभी साबित करते करते उसका मनवाना रह जाता है। ये जो एक कशमकश है कि खुदा का होना और उसका साबित होना, पहले तो ये थोड़ी तमहीद बताइएगा कि ये दोनों बातें एक हैं या अलग अलग हैं। आया ये क्वेश्चन भी बनता है या नहीं बनता? देखें, किसी का होना और चीज है, साबित होना अगला स्टेप। फिर साबित किससे किया जाएगा? क्या आपके जो करंट दस्तयाब आलात हैं या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्या उससे साबित किया जाएगा या साइंस से साबित किया जाएगा? तो पहले होने की तरफ आया जाए या पहले सबूत इकट्ठे किए जाए, सलमान साहब? जी, बहुत खूबसूरत तरीके का सवाल किया आपने, और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि 2 लोग खाड़े में उतरते हैं, हम्म। यही कहना चाहिए मेरा ख़्याल है, और रूल्स डिफ़ाइन किए बगैर कुश्ती हम्म। शुरू हो जाती है। अव्वल वाक़ई मंतकी बहस होनी है, तो रूल्स ऑफ द गेम डिफ़ाइन होने चाहिए पहले, कि हम हम्म। कर क्या रहे हैं, और उसके साथ अव्वल वो किया जाए जो मुमकिन है, और दूसरा अगर कर रहे हैं तो रूल्स ऑफ द गेम डिफाइन हो कि हम हम्म। ये साबित कर रहे हैं, हम किस पैराडाइम में बैठ के ये करेंगे, किस चीज़ को हम दलील मानेंगे, किसको नहीं मानेंगे, इन अ सेंस कि हम अकल से करेंगे, हम लॉजिक की बात करेंगे, फिलॉसफी के साथ जाएंगे, या हम साइंस को मानेंगे, या हम कोई और टूल यूज़ कर रहे होंगे। सो ठीक। यस, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और जो एक मिक्स हो गया है, जैसे आपने कहा कि इस वक्त जो चल रहा है, तो उसमें दोनों साइडों से जो इस टाइम डिबेट हो रही है जिसमें लोग हार रहे हैं और जीत रहे हैं, उसमें ख़ास तौर पे ये है कि उसमें कम इल्मी की वजह से दूसरा बंदा, एक की हम्म। कम इल्मी की वजह से दूसरा बंदा जीत रहा है। यानी हाँ, वो खूबसूरत मैं बात। मैं एक बिल्कुल। ऐसे बंदे को दावत दे दूं, एक ऐसे हम्म। बंदे को दावत दे दूं जिसने गिन के 4 सूरतों के अलावा जो है कभी कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन उसका जो ईमान जो है वो इतना जोश मारता है कि वो कहता है मैं जाके कायनात के जो मैंने निशानियां देखी हैं मैं उनका सबूत दूंगा और खुदा साबित हो जाएगा। तो ये उसके इल्म की कमी की वजह से जब उसे वो सवाल पेश आते हैं जो कि उलमा का शोबा है, अगर वही की बात करें, अगर कुरान के रेफरेंसेस की बात करें, तो वो उलमा का शोबा है जिस पे वो दलील दे सकते हैं। तो हम में से जितने भी हमारे जज्बाती मुसलमान जो अपने ईमान की भी ताजगी के लिए और उस जोश के तहत वो छलांग लगा देते हैं, तो एक तो ये देखने में आ रहा है जिस पे काम भी होना चाहिए और जिस पे ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि यार मैं अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जो है मैं आर्गुमेंट करूं और उस लेवल के बंदे से बात करूं। सो जो खुदा का साबित होना है, क्या खुदा साबित हो सकता है? तो मेरे ख्याल हम्म। में मैं अगर आगाज करूं तो वो ये होगा कि इस मायने में नहीं हो सकता कि आप कहें कि जैसे आप पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हम्म। मालूम कर लेते हैं, या एक केमिकल रिएक्शन, या आप ग्रेविटी को जैसे समझ लेते हैं, इस तरह खुदा साबित हो जाए, तो ये तो मुमकिन नहीं है।
सलमान साहब, आपने बड़ी खूबसूरत तमहीर बनाई है। मैं अगर सवाल को यूं बदल लूं कि अगर इन शॉर्ट हमें जाना पड़े कि खुदा है और उसका होना हमें एथीस्ट को या मुल्हिदीन को या नए होने वाले मुसलमानों को या जो होना चाह रहे हैं, अगर उनको हमें इंट्रोड्यूस करवाना है, तो अब देखिए दो दो ही सूरतें हो सकती हैं। या तो यह है कि हम साइंसी एक उस फेनोमेना में बात करें, या दूसरे जैसे हमारे सूफिया ने कशफ का सहारा लिया और ये ऐसी इल्हाम की किस्में वहां भी नजर आती हैं, उनके ऊपर वारदातें कल भी होती है। तो देखिए ये खुदा का होना, ये बहुत बड़ा जुमला है उन लोगों के लिए जो नहीं मानते, ठीक है जी। क्योंकि हमें तो कोई जस्टिफिकेशन चाहिए नहीं है ना, हम तो मानते हैं सोचते समझते हुए और अपने बावजदाद के उन रिवायात पर चलते हुए। तो आपको क्या लगता है सलमान साहब कि हमें ये खुदा का तारुफ देते हुए सूफिया वाले ऑप्शन पे जाना चाहिए, मंतक इस्तेमाल करनी है, और तीसरा ऑप्शन फलसफा? और ये कहा जाता है कि जी मजहब जो है ना, फलसफे का सहारा लेता है, जहां पे साइंस अपनी बेबसी का इजहार करती है। हमें अलग-अलग चीज़ों को जो है वो रख के देखना पड़ेगा। हम जी। अगर अगर मैं कह रहा हूँ कि साइंस से इस तरह से मुमकिन नहीं, तो इसका क्या मतलब है? जब मैं कह रहा हूँ कि कशिश शकल की तरह या केमिकल रिएक्शन की तरह ये नहीं हो सकता, तो इसका क्या मतलब है? और फिर जो आपने दूसरी बात की अकल से, तो इसका क्या मतलब है? इसको हम अलग-अलग रख के पहले हमें देखना पड़ेगा। अगर ये कहीं कामयाब होते हैं, तो इनको इस्तेमाल करें। और आगे जाके फिर जो सूफिया का आता है, उसमें भी एक लिमिटेशन है और इनकी जो हैं अपनी लिमिट्स हैं। अब आप सवाल करेंगे कि वो क्या लिमिट्स हो सकती हैं और किससे हो सकता है? तो 2 चीज़ों को हम पहले सेपरेट कर लें कि एक बात ये है कि खुदा मौजूद नहीं, ये एक मुख्तलिफ बात है। और दूसरी ये है कि खुदा को उस तरीके से साबित नहीं किया जा सकता, जिस तरीके से किसी चीज़ को आप मादी तौर पे किसी लेबॉरेटरी में प्रूव करते हैं। ठीक। ये 2 चीज़ें अलग हैं। सो हम जिस चीज़ पे अभी बात कर रहे हैं कि वो ये है कि अच्छा खुदा को साबित करना है तो किस तरीके से करना है और किस तरीके से जाएँ। सो ये दोनों बातें एक नहीं हैं, हम्म। ठीक है? सो अ, जब एक आम आदमी जब कहता है कि खुदा को साबित करें, तो वो यही पूछ रहा होता है कि खुदा है या नहीं है, ठीक। राइट? लेकिन जवाब देने से पहले ये वाज़ह करना होगा कि हम सबूत से मुराद क्या ले रहे हैं? क्या हम ऐसा सबूत माँग रहे हैं जिसके बाद हर शख्स मानने पर मजबूर हो जाए? नंबर 1। हम्म। या हम ऐसी अक़ली दलील माँग रहे हैं जो बहुत मज़बूत हो, मगर फिर भी सबको एक ही नतीजे तक ना पहुँचाए? ठीक है। ये दूसरी बात है। सो या हम ये कह रहे हैं कि उस यकीन की बात कर रहे हैं जो इंसान के अपने लिए बिल्कुल हकीकी हम्म। हो, मगर वही हकीकत, वही यकीन दूसरे शख्स के अंदर मुंतकिल ना किया जा सके। ये 3 अलग-अलग चीज़ें हैं। यानी सबूत की अगर हम तह में जाएँ कि अगर हम सबूत माँग रहे हैं तो कैसा सबूत? एक वो है कि हर शख्स मानने पर मजबूर हो जाए, कोई क्वेश्चन ना रहे। दूसरा ये है कि ऐसी अक़ली दलील कि हम जो भी अक़ली दलील दें, वो हो सकता है सबको एक ही नतीजे तक ना पहुँचाए। या फिर ऐसा यकीन कि जो इंसान के अपने लिए तो बिल्कुल हकीकी हो, जिसको एक्सपीरियंस हुआ है, जो सब्जेक्टिव उसका बिलीफ है, लेकिन वो ठीक। दूसरे तक वो मुंतकिल नहीं कर सकता। ये तीनों अलग-अलग जो है लेवल्स ऑफ प्रूफ हैं। तो यानी इन शॉर्ट सलमान साहब, फिर हम अगले पॉइंट पे चलते हैं कि अगर आप प्रेजेंट करते हैं, आप इस जगह पे ये बात आगे पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि बहसीयत एक मुवाहिद या एक हम आम से मुसलमान अपने आप को समझ लेते हैं, और चूंकि आप दुनियादारी का इल्म भी समझते हैं, सलमान साहब आप किस ऑप्शन पे जाते हैं कि यार इस तरह से खुदा का तारुफ करवाना चाहिए?
سر میرے نزدیک میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے اگر میرا خیال تھا کہ ہم اس کی انکوائری کرتے کہ جس طرح میں نے سطح متعارف کروائی تھیں اور ایک ایک کو ہم کھول کے دیکھتے، لیکن اگر آپ اس کو کوشچن کو ڈائریکٹ کر کے اور مدعے پہ آنا چاہ رہے ہیں تو پھر ہاں مدعا یہ ہے کہ سائنس سے خدا ثابت نہیں ہو سکتا، جی مدعا یہ ہے کہ عقل سے خدا ثابت نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اب وہ آپ میرے سے اگر وہ سوال کریں گے تو پھر اس کا میں جواب دوں گا کہ کیوں. سائنس سے نہیں ہو سکتا خدا ثابت، عقل سے نہیں ہو سکتا خدا ثابت. یہ میری ذاتی رائے ہے، یہ کسی مسلک کی یا کسی اس کی نہیں ہے، ریپرزینٹ نہیں میں کر رہا، یہ میری اپنی ایکسپیرینشل انڈرسٹینڈنگ اور وہ ہے ٹھیک کہ ہے. تو ان دونوں سے نہیں ہو سکتا. تو میرے نزدیک دو ہی طریقے ہیں کہ یا تو آپ کا فیتھ آلریڈی اتنا مضبوط ہو کہ آپ کو اس کی ضرورت نہ پڑے، ٹھیک ہے، یا فیتھ ہی اگر آپ باہر سے آئے ہیں تو آپ اس پہ پہلے ایمان لائیں. ٹھیک ہے. پہلے ایمان لائیں، یعنی میرا اور آپ کا رابطہ ہوا ہے، مجھے آپ کی پرسنالٹی اچھی لگی ہے، ہمارا کوئی کامن انٹرسٹ نکل آیا ہے، اور میں نے آپ پہ اعتماد کر کے یا آپ نے میرے پہ اعتماد کر کے ہم نے اکٹھا کاروبار شروع کر لیا. کیا مجھے 100% یقین ہے کہ ہمارا کاروبار کامیاب ہوگا یا ہمارا تعلق کامیاب رہے گا؟ نہیں، لیکن وہ ایک لیپ آف فیتھ ہے. ایک چھوٹی سی مثال ہے یہ. سو جو طریقہ ہے جو پاسبل ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک سٹیپ لیتے ہیں، آپ اس دائرے میں انٹر ہوتے ہیں، آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کرتے ہیں، اس کو فیل کرنا شروع کرتے ہیں، اور ڈیورنگ دا پریکٹسز اینڈ ڈیورنگ بلڈنگ یور بلیفس یہ ممکن ہے کہ آپ کو ایک کنیکشن فیل ہو اور آپ کا جو ایمان ہے وہ فیتھ سے نکل کے وہ ایک ایسے یقین میں بدل جائے جس کو آپ تجربہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور چوتھی جو لاسٹ چیز ہے، جیسے میں نے کہا کہ ایک فیتھ سے ہو سکتا ہے اور دوسرا ہو سکتا ہے پھر ذاتی تجربے سے ہی، کہ آپ کسی کا فیتھ ہے یا نہیں ہے اس کو ذاتی تجربہ ہو سکتا ہے، اور ہوئے ہیں لوگوں کو، ایک کو نہیں ہزاروں کو ہوئے ہیں، صوفیاء کو ہی نہیں عام لوگوں کو بھی ہوئے ہیں. اس کے دلائل موجود ہیں، اس کے سرویز موجود ہیں، 1960 سے لے کے 2000 تک موجود ہیں، 2012 سے لے کے 2025 تک لیبارٹری میں اس کے ڈفرینٹ سروس جو ہیں وہ موجود ہیں کہ جو صوفیاء کے ایکسپیرینسز تھے اس طرح کے ایکسپیرینسز لیبارٹری میں ہو رہے ہیں. سو وہ ممکن ہے کہ ایسے ریئلٹی جس کو محسوس کرنے کے بعد ایک نہیں ہزاروں لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ایک ریئلٹی بیونڈ دس فزیکل ایگزسٹ کرتی ہے. ضروری نہیں کہ اسے خدا کہا جائے، لیکن جب آپ اس کو محسوس کر لیتے ہیں تو آپ ایک ایسے تعلق، ایک ایسی کائناتی طاقت کو محسوس کرتے ہیں جو ضروری نہیں خدا ہو، لیکن اس کا کوئی مظہر ہے جو کہ عام زندگی میں ہمارے سامنے ہے لیکن ہم اسے اگنور کر رہے ہوتے ہیں یا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو ایکسپیرینس کیسے کرنا ہے. سو اس کے ثبوت موجود ہیں. تو وہ طریقہ ہے اور وہ ہر انسان کے پاس وہ موجود ہے. اس کے لیے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے آپ کو کوئی چلے کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے آپ کو کوئی میڈیٹیشن کی ضرورت نہیں. وہ آپ کے پاس موجود ہے، آپ کے اندر ہے، اور اینی ون کین پروو ٹو ہم سیلف. میرا یہ خیال ہے. بہت بہت خوبصورت سر، یہ یقیناً بڑی نئی زاویے سے باتیں ہو رہی ہیں. اچھا، اس میں سلمان صاحب میں ایک بات سوچ رہا تھا، جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ یہ تو ایک اسپرچل معاملات ہیں، یہ آپ کا ایک ذاتی معاملہ بھی ہے، اور یہ ایمان اور یہ اعتقاد کی آپ کہہ لیں کچھ ایسے محاذ ہیں جہاں انسان مختلف زاویوں سے دیکھتا ہے، سوچتا ہے، لڑتا ہے. اچھا، اس میں پرابلم سلمان صاحب یہ ہے کہ ہمارے جو یار لوگ ہیں، میں خیر نام نہیں لیتا کسی کا، جنرل ڈسکس کر رہے ہیں کہ سائنس خدا یا مذہب کو موضوع بنا کے وہ اس کو ٹچ ہی نہیں کرتی، وہ کہتی ہے ہمارا موضوع نہیں ہے. جبکہ دوسری طرف سے اصرار یہ ہے کہ جب تک ہمیں کوئی ہبل کے بعد کوئی جیمز ویب جیسی اور ٹیلیسکوپ ایسی سکرین کی طرح نہ دکھا دے کہ یہ دیکھیں
बिहाइंड दिस यूनिवर्स वहां खुदा बैठा हुआ है, तब तक हम मानेंगे नहीं। ये जो एक, मैं तो इसको क्या इसके लिए कोई बच्चा पार्टी का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि ये जो एक जिद है, ये भी कोई इतनी संजीदा रवैयों को जाहिर नहीं करती। कि आप पहले कहते हैं जी साइंस साइंस खुद कहती है मेरा मौजू नहीं है, और जो साइंस के आप कह लें कि जो नाम नहाद उसके गेट कीपर है, वो कहते हैं जी कि नहीं, हमें साइंस से ही दिखाओ। ये जो एक जिद है कि अगर हमें ये कहा जाता है कि आप इत्तेकाद की जिद में हैं, इनकी जिद तो मुझे लगता है इससे भी कहीं आगे नजर आती। सर इसमें भी दोनों साइडों पे एक मसला है, उनका ये डिमांड करना और जी मज़हब के अक्सर लोगों का इसको एक्सेप्ट करके और उस पे बहस करना। जी दोनों एक ही तरह की जो है वो गलती कर रहे हैं। हम्म जो जहाँ पे वो खुदा को फिट करना चाह रहे हैं, यानी साइंस ने जो चीज़ उन्हें बता दी है वहाँ तो उन्हें मसला नहीं है ना, वो फिट करना चाह रहे हैं जहाँ पे गैप्स हैं, बिल्कुल। ठीक है, या उस वहाँ से पूछना चाह रहे हैं। मज़हब वाला जो बंदा है वो वहाँ पे फिट कर देता है कि जो जहाँ जहाँ पे साइंस ने जवाब नहीं दिया वहाँ मजहबी बंदा खड़ा होकर कह देता है क्योंकि आपके पास इसका जवाब नहीं है तो खुदा साबित हो गया। और उसका भी अब जो उसको कहते हैं रिबटल जो वो दे देते हैं वो ये है कि जी अभी अगर साइंस ने जवाब नहीं दिया तो मुस्तकबिल में दे देगी। सो दोनों दोनों एक ही तरह की गलती यहाँ कर रहे होते हैं कि अगर साइंस किसी चीज़ पे खामोश है, मिसाल के तौर पे आपके कमरे में इस वक्त कोई वजनदार चीज़ पड़ी होगी, उसका वेट आप कर सकते हैं किसी वेइंग स्केल से। आपकी बिल्कुल। पीछे जो दीवार है वहाँ से लेके सामने वाली दीवार तक आप अगर आपने डिस्टेंस मेजर करना है तो आप इंची टेप से मेजर कर लेंगे। और मैं आता हूँ और मैं मेटल डिटेक्टर लेके आपका पूरा कमरा स्कैन करता हूँ और उसके बाद कहता हूँ कि कमरे में कोई खुशबू नहीं है। जी अब मेटल डिटेक्टर का ये काम ही नहीं है, मेटल डिटेक्टर का ये काम ही नहीं है ये बताना कि यहाँ पे खुशबू नहीं है, और मैं ये क्लेम कर दूं। सो हम क्या कर रहे हैं, जो साइंस मतलब एक्चुअल ये है कि वो जो टूल जो आप यूज़ कर रहे हैं वो या तो वो अपना काम करेगा और बताएगा कि इसमें ये चीज़ है, इसमें यहाँ मेटल है। जहाँ वो कुछ नहीं बता रहा तो वहाँ कुछ नहीं है। और ख़ास तौर पे ऐसी चीज़, ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ जो उससे किसी भी तौर साबित नहीं हो सकती, उसके बारे में तो ठीक वो है। कभी क्लेम नहीं कर सकता। सो जो टूल हम लेकर चलते हैं उसमें साइंस है, अक्ल है। साइंस में हमारी लिमिटेशंस हैं इसकी कि वो एक तो है ही प्योर मादे की दुनिया, और जहाँ से बैठ के हम उसे साबित करना चाह रहे हैं हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं। कहाँ से मुराद आप अगर इसको फिजिकली भी लेना चाहें कि मैं अगर इसकी बात करूं, मेरे मेरे जहन में बेसिकली दो शेरों में मुकाबला हो रहा है कि मैं कौन सा शेर सुनाऊं आपको। सो मेरे जो जहन में फौरी तौर पे आ रहा है अपना ही मेरा है, मैं वो सुना देता हूँ कि जहां में तो कोई यहाँ ना वहां है। जहां जहां में तो में कोई जहां में तो कोई यहाँ ना वहां है, हम्म न कोई मकान है न कोई जमा है। जहां में तो कोई यहाँ ना वहां है, न कोई मकान है न कोई जमा है। न मैं हूं न तू है नजर ना नजारा। न मैं हूं वाह न तू है नजर ना नजारा है। नजारा, नाजिर वही और वही समा है। वाह सो जबरदस्त। सो एक ऐसी हस्ती जो कि हर जगह मौजूद भी हो और लेकिन वो लामकाम में हो। सो ये प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब आप किसको इसको अकली हवाले से साबित करना चाहें तो हमारी लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ जाती है। लैंग्वेज आज खुद एक लिमिटेशन है। लैंग्वेज की अपनी लिमिटेशन ये है कि ये तो हमारे एहसासात को प्रॉपर नहीं बयान कर पाती। हम्म हमारे पास
अपने कई ऐसे एहसासात को नाम देने के लिए ऐसे जज्बात और एहसासात नहीं हैं, अपने ही जी एहसासात को। तो हम एक ऐसी हस्ती को किन अल्फाज से साबित कर रहे होंगे जिसका हमें मतलब जो कि कुल कायनात का अहाता किए हुए है, हम्म। ठीक है? और ठीक है। अगर आप उसे खालिक मानते हैं तो उसमें वो कुल कायनात का अगर खालिक है तो वो यकीनन उस कुल कायनात का अहाता किए हुए है। बिल्कुल। उसके अंदर बैठ के एक जुज़ जो है वो कुल को समझने के लिए कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा, कौन हम्म। से अल्फाज से वहां तक पहुंचेगा, कौन से अकली दलाइल उसे वहां तक लेकर जाएंगे। सो वापस आते हुए कि एथीस्ट का ये प्रॉब्लम फॉल्सिफाइबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट है जो दिया था कार्ल पॉपर ने। उन्होंने ही उन्होंने ही फॉल्सिफाइबिलिटी की जो चीज़ आप जिस चीज़ को आप गलत नहीं साबित कर सकते तो उस चीज़ का सही साबित करना भी कोई मायने नहीं रखता। सो ये बड़ा मशहूर है और इस डिबेट में जो एथेइज्म की और रिलीजन की है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, आप सबने पहले भी सुना होगा। ठीक है। लेकिन जो नहीं सुना वो है प्रोमिसरी मटेरियलिज्म, कि जब हम्म। कोई मटेरियलिज्म को मानने वाला, फिजिकलिज्म को मानने वाला या एथीस्ट जब ये कहता है कि साइंस ने अभी जवाब नहीं दिया और मुस्तकबिल में दे देगी, तो जी। कार्ल पॉपर ये कहता है कि नो, इट्स नॉट अ साइंटिफिक स्टेटमेंट, इट्स अ मेटाफिजिकल क्लेम। हम्म। तो वो भी वही कर रहे होते हैं वहाँ पे। और इन शॉर्ट दोनों को मेरे ख्याल में रिलीजन वाले बंदे को शर्मिंदा नहीं होना चाहिए इस बात पे कि वो अपने फेथ के ज़रिए खुदा को मानता है, ठीक। ठीक है? और इस चक्कर में कि मेरा मुझे साइंस से ही साबित करना है, उसमें कोई शर्मिंदगी की ज़रूरत नहीं है और उसमें कोई वो नहीं है। अगर आपका फेथ है और आपको एक ताल्लुक महसूस होता है खुदा से तो दैट्स इनफ। आपको किसी सही। की दलील की जबरदस्त। ज़रूरत नहीं है। आपको अपने बच्चे से मोहब्बत है, आपको ये किसी को साबित करने के लिए कोई दलील देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, गजब। अच्छा, सलमान साहब, मुझे यहाँ पे ना अकबर आबादी का वो शेर याद आया, जो कि आप खुद भी शायर हैं। अक्ल में जो गिर गया, ला इंतहा क्यों कर हुआ, जो समा में आ गया फिर वो खुदा क्यों कर हुआ। अच्छा, इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है सलमान साहब, वो बड़ी बारीक बीन है और उसको समझने की जरूरत भी है। देखिए, जब हम ये कहते हैं ना कि वो हमारी सोचों से, हमारे जहन से, हमारे अक्ल से मावरा है, और ये बात समझ भी आती है। इंसान तो अभी सिंगुलैरिटी को नहीं समझ पा रहा, सिंगल डेंस पॉइंट की हकीकतें अभी हमसे पिन्हा हैं। तो वो फिर दूसरी तरफ से हमारे यार लोग ये नुक्ता उठाते हैं कि जब वो हमें समझ ही नहीं आ सकता, जब हम उस तक पहुंच ही नहीं सकते, हम उसकी हैयत तो चले बहुत एक और हसास लफ्ज है, हम उसकी हकीकत तक ही नहीं जा सकते, तो वो फिर रोजे मैशर हमें किस तरह ये सवाल वो जात कर सकती है कि आपने मुझे समझा क्यों नहीं, मुझ तक पहुंचे क्यों नहीं, जबकि आप अहले मज़ाहब का खुद ये दावा है कि वो अकल में आ ही नहीं सकता। जी सलमान सर। ये थोड़ा जो है एक मज़हबी स्कॉलर लेवल का सवाल हो जाएगा। मेरा जो ठीक है। खुदा का बिलीफ है वो एक्सपीरियंशियल, मैंने आपको बताया कि मैं उस पे खड़ा हूँ। ठीक। मेरा खुदा जो है वो अकली भी नहीं है और मेरा खुदा साइंसी भी नहीं है। मेरा जी। खुदा एक इधर। मेरा खुदा एक रोमांस है जो मुझे डिफरेंट अंदाज में, डिफरेंट एंगल्स में जो है वो महसूस होता है कि एक और मेरा शेर था, खुद ही में रह के खुद ही से लड़के खुद ही को मेरी मिटा रहा है। हम्म। खुद ही में रह वाह। के खुद ही से लड़के खुद ही को मेरी मिटा रहा है। क्या। ये कौन ये कौन है जो मुझी में रहकर मुझी को मुझसे मिला रहा है। वाह। तो बहुत अच्छी। ये बहस के रोज़े महशर क्या होगा और खुदा को मैंने साबित करना है। मेरा पहला सवाल ये है कि वो जो साबित करने जा रहा है, वो जी। इंसान जो ये कोशिश कर रहा है या जो ये डिमांड कर रहा है, क्या उसका अपना आप साबित है? हम्म।
आपकी अपनी क्या हकीकत है, आप जो जो जहन इस पूरे जिसको कहते हैं कि कैलिब्रेशंस जो ये कर रहा है और जो ये नाप तोल कर रहा है और जो ये दलाइल दे रहा है और जो साइंस से और जो मुख्तलिफ अंदाज से साबित करना चाह रहा है, अपने बारे में वो उसकी अवेयरनेस क्या है? सही। क्या वो उसे जानता है? सो ये बहुत करीब के सवाल हैं। मैं थोड़ा सा आपको शायद ये बोरिंग या थोड़ी अजीब बात लगे आपको भी और ऑडियंस को भी, ये इंतहाई करीब की चीजें हैं। हम्म। जब जब तक आप अ, खुद को समझने में किसी लेवल तक नहीं पहुंचते, मेरा ये ख्याल है, बाज़ लोगों को इसके बगैर भी हो जाते हैं, लेकिन जब तक आप खुद को समझने के किसी लेवल तक नहीं पहुंचते, आप खुदा को नहीं समझ सकते। हम्म। सही। कोई एक्सपीरियंस भी अगर आप चाहते हैं कि जिससे आपको इस पे बिलीफ हो जाए खुदा पे, तो आपको खुद को समझना होगा, आपको खुद को जानना होगा। और वो खुद जो है, बहुत अच्छा। वो अगर हम उस लैंग्वेज में बात करें, जो मेरी बात थोड़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है, लेकिन अगर हम थोड़ी सूफिया की लैंग्वेज में बात करें, तो वो वही मैं है जो बुल्ले शाह जिसके बारे में ज़िक्र कर रहे हैं, या जो इब्न अरबी या मंसूर जिसका ज़िक्र करते आए हैं, ये हम्म। वही मैं है जो मुख्तलिफ अंदाज में कभी उस मैं को ख़त्म करके और कभी उस मैं को ख़त्म करके एक ऐसी रियलिटी को वो एक्सपीरियंस करता है इंसान कि उसे लगता है कि उस वो मेरे इतने करीब है और मेरा उससे इतना क्लोज ताल्लुक है कि वो और मैं जुदा हैं ही नहीं। जी। सो वो फिर अनल हक भी कहता है, और वो फिर ये सवाल भी करता है कि मुझे नहीं मालूम कि मैं कौन है, मेरा उससे ताल्लुक कोई नहीं है, वो जो मैं जिसको लोग कहते हैं मेरा उससे ताल्लुक कोई नहीं। मेरा ख्याल ये है कि आपका पहली छलांग वहाँ लगाने की बजाय पहली छलांग यहाँ होनी चाहिए कि आप खुद को तो समझ सकें। खुद को समझो, ठीक है। बहुत खूबसूरत। अच्छा सलमान साहब, आप बात करते हैं और बात फिर वहां से निकल आती है। मैं अगर यूं कहूं, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि ये जो एक हमारी नासमझ है, और जिसको आप लाइल्मी कह लें या कम इल्मी कह लें, ठीक है। मेरा ख्याल तो है कि लाइल्मी का लफ्ज भी मुनासिब ही है। अच्छा, अब जब आप ये कहेंगे दौरे हाजिर के हमारे जो पढ़े लिखे हजरात है कि मुस्तकबिल करीब या मुस्तकबिल बईद की एविडेंस बेस्ड साइंस जब हमें बताएगी कि कोई है तो हम मानेंगे। तो ये जो एक लाइल्मी है, वो जो एक फासलों पे जो एक लुत्फ है, तो खुदा को खुद मार्फत से ढूंढने की बजाय जब आपने साइंस की विसाखियों पे खड़ा कर दिया, इसका मतलब है फिर वो बात हुई है जो आप कर रहे हैं कि आप इसको फिजिकल या एम्पेरिकल एविडेंस से ढूंढना चाह रहे हैं। आपका अपना इल्म, आपकी अपना शौर, आपकी अपनी सेंस जो है, वो तो फिर सारी की सारी बेकार चली गई ना। नहीं, वो हमें बात वही है ना कि मैं मेटल डिटेक्टर से खुशबू ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मुमकिन नहीं है। लेकिन मेटल बिल्कुल। डिटेक्टर बेकार नहीं है, वो और कामों के लिए है। और कम हो गए। आप ज़िंदगी के दूसरे मामलात के लिए आपको ज़िंदगी गुजारनी है, आपको ज़िंदा रहना है, आपको काम करना है, उसके लिए आपको अक्ल चाहिए, इंसानी शऊर और बहुत सारी जो ज़िंदगी में तजर्बात कर रहा है। और खुदा ने इंसान को इस दुनिया में एक्सपीरियंसेस के लिए भेजा है, और वो डिफरेंट लेवल तक जितना उसमें कमाल हासिल कर सकता है वो करे। लेकिन गलत टूल को यूज़ करके या ऐसे टूल को यूज़ करके जो कि उस पे अप्लाई नहीं हो सकता, वो मुमकिन नहीं है। और साइंस की जहाँ तक बात है, अब या मुस्तकबिल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुस्तकबिल में कभी भी साबित नहीं हो सकती। मैं थोड़ा मोहतात होकर ये बात करूँगा, लेकिन कभी भी नहीं होंगी। मिसाल के तौर पे, इस वक्त लेबॉर्ट्री में आप न्यूरो साइंस के थ्रू दिमाग के तकरीबन सारे नेटवर्क्स जो हैं जो काम कर रहे हैं वो देख सकते हैं। दिमाग के अंदर नेटवर्क्स मल्टीपल हैं, ठीक डिफरेंट है। रीजन्स में हैं, और वो कैसे काम कर रहे हैं उसका मैकेनिज्म सारा मौजूद है। डिटेक्ट जो हो गया है कि अगर आप कुछ सुनते हैं तो क्या महसूस होता है, कोई अच्छी चीज़ देखते हैं या क्या महसूस होता है, आप अगर खौफ में होते हैं तो उसमें आपको जो महसूस होता है तो ब्रेन के कौन से रीजन एक्टिव होते हैं, वो सारा मैकेनिज्म है।
لیکن وہ جسے محسوس ہو رہا ہے وہ میں وہ خود جس کو وہ احساس ہو رہا ہے وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتا. بالکل. جس کو وہ ایکسپیرینس ہو رہا ہے وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتا, اور سائنس جو ہے وہ اس کو ہارڈ پرابلم آف کانشیسنیس کا نام دے کے سائڈ پہ کر دیتی ہے کہ یہ اٹس اے ہارڈ پرابلم. وہ سبجیکٹو ایکسپیرینس جس کو ہو رہا ہے وہ نہیں پتا. ابھی میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ مجھے بتائیں, آپ اپنے آپ کو کدھر سمجھتے ہیں؟ رانا غضنفر کیا محسوس کرتے ہیں کہ آپ کدھر ہیں؟ کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ یہ جسم ہیں یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہیں. تو کیا آپ اپنے آپ کو یہاں پہ محسوس کرتے ہیں, دماغ میں محسوس کرتے ہیں؟ کچھ حد تک. کچھ حد تک. لیکن جو احساسات ہیں, جو کیفیات ہیں, یعنی سائنس میں لیبارٹری میں یہاں تک ہو گیا ہے کہ جو ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک ہے, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارا ایگو ہے نا, وہ ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک کا ایک نوڈ ہے جس کے تھرو ہم خود کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور اس دنیا کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں, اور ڈفرینٹ انفارمیشنز وہ فلٹر کر کے اور اپنی اس میں کھڑے ہونے کی ایک جگہ بناتا ہے. وہ ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک کا ایک حصہ ہے جو کہ ہر وقت کم از کم تھوڑی نہ تھوڑی ایکٹیویٹی اس میں چلتی رہتی ہے. جب آپ بالکل کچھ نہیں کر رہے ہوتے اور آپ حتیٰ کہ کچھ سوچ بھی نہیں رہے ہوتے, تب بھی ہلکی سی چلتی رہتی ہے. اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا گیا کہ جو صوفیاء نے ایکسپیرینس کیا تھا, یا جو 1960 سے لے کے 2000 تک ہزاروں سرویز ہوئے عام لوگوں سے, 40-50 ملکوں سے زیادہ ملکوں میں اور ان ملٹیپل لینگویجز میں سیم سوال پوچھے گئے, اور جو ریزلٹس تھے وہ حیران کن تھے کہ بہت سارے لوگوں کو ایسے تجربات ہوئے ہیں جیسا کہ اگر 100% اس لیول کے نہیں جو صوفیاء کو ہوتے تھے, بلکہ ایٹ لیسٹ کچھ انٹینسٹی کے, کہ جہاں آپ کا وہ جو میں کا احساس ہے وہ کم ہونے لگتا ہے یا تحلیل ہونے لگتا ہے, آپ کو ایک کائنات سے جڑت محسوس ہونے لگتی ہے, اس طرح کے تجربات. تو لیبارٹری میں انہوں نے ایک سبسٹنس ہے جو آپ نے سنے ہوں گے, جو ڈرگز ہوتی ہیں, مشرومز اور اس طرح کے میجک مشرومز ایک ڈرگ ہے, اس میں سبسٹنس ہے سائلوسائبن. وہ انہوں نے سلیکٹ کر کے اور ہنڈریڈز آف جو ہیں والنٹیئرز انہوں نے لے کے ان پہ ایکسپیریمنٹ کیا, اینڈ دے ور سرپرائزڈ کہ سائلوسائبن کے استعمال سے وہ جو میں جس کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں نا اپنے اندر, جس کو ہم ایگو کے نام سے ڈیفائن کر سکتے ہیں, جو ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک کے اندر ایک نوڈ ہے, وہ ڈیزالو ہونا شروع ہو گیا. ڈیزالو سے مراد اس کی ایکٹیویٹی بالکل منیمم پہ چلے گئی. لیکن اس دوران جب وہ کچھ نہیں کر رہا تھا یا بالکل منیمم پہ چلا گیا تھا, منیملی ایکٹیو تھا, انہوں نے وہ ایکسپیرینسز کیے لوگوں نے, جس کے بعد وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک لائف چینجنگ ریئلٹی, ایسی ریئلٹی فیل کی ہے کہ جس کے بعد ہمیں اپنی لائف جو ہے وہ ڈفرینٹ فیل ہو رہی ہے. بالکل. ہمیں ایک ایسا احساس ہمارے ساتھ ہے مسلسل, جو ہم سے اس کیفیت کے بعد وہ ہم سے ہٹا نہیں ہے. اب یہاں میرا مقصد کوئی وہ ڈرگ کی مارکیٹ کرنا نہیں ہے, میں بیسیکلی جو وہ ڈاکٹرز ہیں اور جو میڈیکل جو انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیے ہیں, میں جسٹ اس کی ایکسپلینیشن دے رہا ہوں. سو لیبارٹری میں اس کے ٹیسٹ 2012 سے لے کے 2025 تک اس کے 2-3 دفعہ ڈفرینٹ ٹرائلز جو ہیں وہ ہوئے ہیں, اور اس میں انہیں سملر ریزلٹس ملے ہیں کہ آپ کی جو سیلف ہے وہ یہ نہیں ہے جس کو ہم اپنی میں سمجھتے ہیں, اور آپ کا جو جس کو آپ ایگو کو ڈیفائن کرتے ہیں, تو اس سے ہٹ کے کچھ ہے جو اس کو محسوس کرتا ہے. سو یہ ایک پوائنٹ آ گیا کہ جہاں پہ ہم ایک ایسے سیلف سے, یعنی ہمیں اپنے سیلف کا نہیں پتا کہ جو یہ سارا ایکسپیرینس کر رہا ہے, تو ہم اس کو چھوڑ کے ہم اس پہ سوال نہیں کرتے, ہم اس پہ سوال کرتے ہیں کہ جو کہ بہت مشکل ہے. جو وہ کہہ رہا ہو, جب وہ کہہ رہا ہو کہ میں تمہاری شہرت سے قریب ہوں. حدیث نہیں ہے, میرا خیال ہے حضرت علی کا قول ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے
रब को पहचाना। सो बिल्कुल। सो इसमें क्या है, मतलब छोटे होते से तो समझ नहीं आती थी इस बात की, लेकिन जब आप ऐसे एक्सपीरियंसेस कुछ करते हैं और आपको अपना वो मैं है मेल्ट होता दिखाई देता है, तो देन आपको एहसास होता है कि ओके, देयर इज समथिंग बियॉन्ड दिस फिजिकल। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें हेमंत सर छोटे छोटे सवाल हैं, फिर हम इंशाल्लाह इसको वाइंड अप की तरफ जाएंगे। पार्ट 2 भी हमने करना है कि ये जो एक आम लोगों का यकीन है या अकीदा है, वो हमें किसी और पैरामीटर में नजर आ रहा है, और जो खास का खुदा समझने का तरीका हायकार है, वो हमें कुछ और तरह से नजर आ रहा है। तो ये जो एक डिवीजन बन गई है, तो जो एक थर्ड पार्टी है या जो एक आम ऑडियंस है, वो किस पे कान धरे? वो आम आवाम जो अकायद पर और अपने बिलीफ सिस्टम पे चलती है, या जो खास जो साइंसी जहन रखने वाले, यानी जो मवाहिदीन में जो साइंसी जहन रखने वाले लोग हैं, वो उनके पीछे चले? क्या आप, अगर मैं सादा लफ्जों में सवाल करूं सलमान साहब, के खुदा को ढूंढने के लिए क्या किसी गलत आले का इस्तेमाल हो रहा है, इसी वजह से लोग नहीं ढूंढ पा रहे? सर मैंने जैसे पहले कहा, अब अगेन मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूं इस टॉपिक पे, लेकिन मेरी राय है। आला हो या रास्ता हो, सीधी सी जो बात है वो ये है कि वो यूज़ करें जिसके आप हम्म। कैपेबल हैं, नंबर वन। ठीक। दूसरे नंबर पे मैंने बात की कि आपको अपोलोजेटिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका फेथ साइंस पे नहीं खड़ा, अगर आपका फेथ मतलब ये नहीं कि वही या कुरान जो है वो अकल की बात नहीं करती, अकल यकीनन चाहिए आपको शौरी तौर पे, खुदा पे बिलीफ के लिए आपको ईमान के बाद भी अकल जो है वो चाहिए, उसको इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप उससे फेथ के बगैर किसी को हम्म। साबित करने जा रहे हैं, तो फिर मैं माजरत करूंगा, अकल और उसके साथ आपकी जो सबसे बड़ी लिमिटेशन ज़ुबान की है, आप आप नहीं कर सकते। लैंग्वेज जो है वो खुद एक बहुत बड़ा बैरियर है। यानी आप इसी लैंग्वेज में देखें ना, कि अदालत में जो केस लगता है वही रूल्स होते हैं, वही लॉज होते हैं, और दो मुख्तलिफ ऐसी आरा आती हैं कि आपको दोनों सच्चे लग रहे होते हैं। हम्म। तो लैंग्वेज जो है वो एक ऐसा बैरियर है हमारी, ख़ास तौर पे जो इस वक्त इंसान की लैंग्वेज बनी है, जिस तरीके से बनी है, और जहाँ पे हम आके बैठे हैं, और जो हम आम तौर पे अभी भी जो फ़लसफ़ा और मंतक के जो राइज असूल हैं, वो इनहेरेंटली उसमें प्रॉब्लम्स हैं। मैं ठीक है। एग्जैक्ट फ़िलासफ़ी का उस तरह से ना तालिब इल्म हूँ, ना मैंने उसको उस तरह स्टडी किया, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं कि एक ही जुमला सही भी हो और गलत भी हो। हम्म। ये मुमकिन है। तो जब ये मुमकिन है, तो इस लैंग्वेज के साथ मेरी कोई भी दलील कैसे मैं, मतलब कोई कोई अगर कोई भी दलील देगा तो मैं उसको उससे कैसे मान लूँगा? यस, मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ भी नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन एक ऐसी चीज़ को इसको ऐसे उठा के ऐसी चीज़ पे अप्लाई करना कि जो खुद उन तमाम का खालिक है, कि जितनी भी आप अक्ल जमा कर लें, ठीक है, वो किसी ना किसी तजर्बे से, किसी ना किसी ऑब्जर्वेशन से आ रही है। तो वो सब कुछ जो आप जिसका तजर्बा कर रहे हैं, टूटा फूटा या कुछ सही जोड़ तोड़ मोड़ के, तो वो जिस भी जुबान ठीक। में और जिन भी इमेजेस में जो आपने तस्वुरात बनाए, वो उन सब का अहाता किए हुए है। तो उस पे बिल्कुल। अगर बात करने जा रहे हैं तो इंतहाई कमजोर टूल है मेरा। सो वापस आपके मेन क्वेश्चन पे आते हुए, सर, अगर आप फेथ रखते हैं तो यकीनन आपको तो नंबर वन, आपको अपोलोजेटिक होने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ईमान बिल गैब लाया हूँ और मैं खुदा पे ईमान रखता हूँ, तो लेकिन मेरे पास साइंस की अगर दलील नहीं है तो मेरा मज़हब या मेरा खुदा जो है कमज़ोर हो गया। हरगिज़ नहीं। आपका फेथ है, आपका फेथ है, आप अपने फेथ में रहते हुए वो चीज़ें खुदा को मानने के साथ साथ खुदा की मानना शुरू करें, आपको कनेक्शन फील होने लग जाएगा। आपको लिटरली आपको कनेक्शन फील होने लग जाएगा।
खुदा की मानना शुरू करें, और उसके बाद अपोलोजेटिक होने की ज़रूरत नहीं। और उसके बाद जो दूसरी बात है, उससे उससे आप जो कह रहे हैं कि डिफरेंट दर्जात हैं लोगों के, जिस या डिफरेंट कैटेगरीज में जो है लोग बयान कर रहे हैं। एक अगर खाली फेथ की बात कर रहे हैं, या दूसरे उसके साथ साइंस की बात कर रहे हैं, तो वो किसके पीछे। तो अगर आप किसी के पीछे जा रहे हैं तो फिर आपका अपना इल्म भी होना ज़रूरी है उस शोबे में, कम से कम। यानी अगर आप साइंसी तौर पे जो समझ रहे हैं कि ये बंदा साइंसी तौर पे बात कर रहा है और मैं इसको फॉलो करते हुए आगे जाऊं, तो अगर तो आप सिर्फ फॉलोअर हैं तो आपको आप कहीं ना कहीं जाके रुक जाएंगे और आपके पास जवाब नहीं होगा। लेकिन अगर आपका अपना मुतालिया भी मौजूद है, अगर आप शौरी तौर पे उसको फॉलो करते हैं के साथ साथ आपका अपना भी कोई ना कोई शौरी प्रोसेस चल रहा है उसी डायरेक्शन में। अगर साइंस के साथ कर रहे हैं तो साइंस का, अगर अकली हवाले से कर रहे हैं तो अकल का, तो फिर ये मुमकिन है कि आप कोई नेक्स्ट लेवल तक पहुंच सकें या कोई एक स्टेप आगे जा सकें। लेकिन अगर आपके पास अपना खुद कुछ मौजूद नहीं है, आप सिर्फ सुन के जो है वो फॉलो कर रहे हैं, तो आप अनकरीब आपको दो बंदे ऐसे मिलेंगे जिनको जब आप जवाब देने लगेंगे तो आपसे ज़्यादा इल्म जिसके पास होगा वहाँ आपकी ब्रेक लग जाएगी। ठीक है। अच्छा भाई साहब, बहुत शुक्रिया। आपने जो बात की है, मुझे ऐसे लग रहा है कि जिन लोगों को मुखातिब कर रहे हैं, हमारी अपनी ऑडियंस को भी, कि वो जो अभी तक दोराहों पे क्या बल्कि चौराहों पे खड़े सोच रहे हैं, जैसे किंग फहद कॉजवे के ऊपर आप खड़े हो और आपको ये ना समझ आ रही हो कि मैंने सऊदी अरेबिया जाना है या बहरीन जाना है, तो इसका मतलब है आपको वहां नहीं होना चाहिए था। बहरहाल सलमान साहब, बहुत अच्छा लगा आपने जो एक शॉर्टकट में हमें जवाब दिया कि कायद वाला बहुत सारे रास्ते हैं, लॉजिक भी है, मंतक भी है, शौर भी है, लेकिन जो आपकी एक अपनी जाती मार्फत है और जो आपकी अकायद वाला एक पहलू है, वो जरा खुदा को मानने में बड़ा नजदीक पड़ता है। बाकी हर बंदे की अपनी चॉइस है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, यहाँ से हमारा जो रब टूट रहा है, क्योंकि वक्त बहुत सारा हमारा वो नेट की वजह से ज़ाया हो गया, दिल तो नहीं कर रहा है कि हम यहाँ इसको मुनक़ता करें, लेकिन बहरहाल हम आपकी बातों को इस कता ताल्लुकी कह लें जो आर्जी तौर पे होने लगी है, कि बात भी सोचेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सलमान साहब, जाते हुए को 20-30 सेकंड में को हमारी जनरेशन के लिए मैसेज। दो शेर आपको सुना देता हूँ कि वादिये पुरखार में चलने लगे चलते रहे, वादिये पुरखार में चलने लगे चलते रहे, आबले थे पाँव में रिसने लगे रिसते रहे, वाह। और वस्ल की ख्वाहिश नहीं अब इस कदर हम साथ हैं, हम्म। वस्ल की ख्वाहिश नहीं अब इस कदर हम साथ हैं, हिज्र में तेरे ये राज ऐसे खुले खुलते रहे। वाह, अच्छा है, जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और तमाम ऑडियंस का भी शुक्रिया, आपने भी मुझे काफ़ी देर बर्दाश्त किया। और जो लोग इस लेवल तक एंड तक आके देख रहे हैं उनका ख़ास तौर पे शुक्रिया, जो अ, इतना लंबा टाइम बर्दाश्त कर सके। बहुत शुक्रिया सलमान साहब। इंशाल्लाह ताला जल्दी हम कोशिश करेंगे कि दोबारा साथ हो, आपको जहमत देंगे इंशाल्लाह ताला। और एक लाइन मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जिस तरह जहर रगों पैर में उतर जाता है, हाँ, इश्क इंसान के अंदर से गुजर जाता है। वाह वाह। ये मेरा दिल भी कहीं शद्दाद की जन्नत तो नहीं, हाँ, ये मेरा दिल भी कहीं शद्दाद की जन्नत तो नहीं, जो भी आता है वो दरवाजे पे मर जाता है। वाह इंशाल्लाह वाह ताला वाह। मिलते हैं जी थैंक यू पार्ट 2 वेरी के मच। साथ। बहुत शुक्रिया बहुत सर, फीमा। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज़।